Hello students, today we are going to study about the parallel axis theorem. What is the parallel axis theorem? First of all, we see what is the statement of the parallel axis theorem. Parallel axis theorem states that moment of inertia of object about any axis is equal to sum of the moment of inertia about the parallel axis passing through the center of mass and product of mass and the square of distance between two axes. Okay, now this is the statement of the parallel axis theorem. This theorem we have to verify here. For that, suppose we consider that this is the rigid body. This is a rigid body. From this rigid body, from the center of mass of this rigid body, an axis passes through the center C. Okay, now another axis which is parallel to this axis which is passing through the center of mass, that axis we consider, suppose IO is the moment of inertia of that axis which is parallel to the axis which is passing through the center of mass. The axis which is passing through the center of mass, its moment of inertia is denoted by, suppose, IC. Now according to parallel axis theorem, we have to verify that IO, the moment of inertia of this body with respect to the axis which is parallel to this axis, that is IO is equal to IC plus mass of the body into square of the distance between these two parallel axes. Okay, now this IO is equal to IC plus MH square, ये आपको verify करना है. Okay, now what are the conditions to find out the moment of inertia of this body by using the parallel axis theorem? ये आपको पता होना चाहिए. पहले सबसे पहले तो एक एक्सिस आपकी सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए. ओके, एंड अनदर एक्सिस, दैट एक्सिस इज पैरेलल टू दिस एक्सिस. ओके, ये कंडीशन है. व्हेनेवर वी सॉल्व द न्यूमेरिकल्स वी रिक्वायर द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये आपको फॉर्मूला उसमें लगेगा. तो उसके लिए पहली कंडीशन है, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, दूसरी एक्सिस वो एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए, और दो एक्सिस के बीच में कुछ डिस्टेंस, सपोज h इज द डिस्टेंस, ये कांस्टेंट डिस्टेंस रहना चाहिए. ओके, नाउ वी वेरीफाई दिस थियरम. सी हियर, सपोज दिस इज योर रिजिड बॉडी. कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m. ये रिजिड बॉडी का जो मास है, m इज द मास ऑफ द बॉडी. अभी आपको एक स्मॉल मास कंसिडर, एक स्मॉल एलिमेंट अपन कंसिडर करेंगे एट पॉइंट P. उसका मास रहेगा dm इज द मास एट पॉइंट P. ओके, एंड this is the center of mass of this body. An axis is passing through this center of mass. Its moment of inertia is IC. Now we consider this P point which is at a distance RC from the axis which is passing through the center of mass. इतना समझ में आ गया आपको? तो इसका moment of inertia with respect to this axis क्या हो जाएगा? We know that is the mass into distance square. Okay, so IC it is equal to integration of dm RC square. ये equation 1 हो गया. This is the moment of inertia of a body with respect to the axis which is passing through the center of mass. अभी दूसरे axis consider करना है, that is suppose this is the axis having moment of inertia I0 which is at a distance h from this axis. अभी ये axis से ये एलिमेंट having mass dm कौन से डिस्टेंस पे है? RO is the distance. So what is the moment of inertia of this element with this axis? आप कैसे फाइंड आउट करोगे? उसका मास और ये एलिमेंट का ये एक्सिस से उसका डिस्टेंस का स्क्वायर. सो IO इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm RO स्क्वायर. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हियर. अभी ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो दिस डायग्राम और ये पूरा डेरिवेशन आपको लिखना पड़ेगा. स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है.
Now we verify that IO is equal to IC plus MH square. जो स्टेटमेंट है उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो अपन अभी प्रूव करेंगे. ओके, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, आपको मास कंसीडर करना है, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना है, उसका मास अपन डीएम लिए रहे. ओके, वो एलिमेंट का ये दो एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहेगा, वो दो इक्वेशन आपको मिल गए. नाउ सपोज एक कंस्ट्रक्शन करना है. ये दो लाइन जो h डिस्टेंस है दो लाइन में का, उसको वो लाइन को अपन आगे एक्सटेंड करेंगे. ओ सी लाइन को D तक एक्सटेंड करेंगे. ये बन गया अभी ट्रायंगल आपका OPD. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. नाउ वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम टू दिस ट्रायंगल. अभी क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस OP स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाट, OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. ठीक है, OP स्क्वायर इट इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. Then OP square it is equal to, instead of this OD we can substitute OC plus CD. अभी OC में का डिस्टेंस h है और ये CD में का डिस्टेंस x है, वो आगे जाके सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन. नाउ दैट OP स्क्वायर इट इज इक्वल टू OC स्क्वायर, OC प्लस CD होल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दिस PD स्क्वायर. ओके, इतना समझ में आ गया आपको बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. नाउ OP स्क्वायर ये हो गया आपका OC प्लस CD स्क्वायर A प्लस B होल स्क्वायर. इसको फॉर्मूला लगा के आपको पता है A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर. वैसे ही OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC इंटू CD. इज इट क्लियर टू यू? प्लस CD स्क्वायर थर्ड सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस ये जो PD स्क्वायर है वो PD स्क्वायर. ओके, नाउ सी हियर OP स्क्वायर इट इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर. नाउ सी इन द डायग्राम, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इट इज इक्वल टू CP स्क्वायर. अपन लिख सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. ये एक छोटा सा राइट एंगल बन के यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद सो यहाँ पर भी अपन पाइथागोरस का थ्योरम लगा के CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर CP स्क्वायर हो गया. सो इंस्टेड ऑफ दिस CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर वी कैन राइट CP स्क्वायर. ये समझ में आ गया आपको? ओके, नाउ दिस OP स्क्वायर वी नो दैट OP स्क्वायर इज इक्वल टू RO स्क्वायर. डायग्राम में आपको पता है OP स्क्वायर इट इज इक्वल टू RO स्क्वायर लिख सकते हैं अपन. सो RO स्क्वायर प्लस OC इज नथिंग बट योर H स्क्वायर प्लस ट्वाइस, दो इसमें का डिस्टेंस H है सो OC H हो गया, CD X है, इसका ट्वाइस HX और CP स्क्वायर इज नथिंग योर RC स्क्वायर. ओके, नाउ मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय DM एंड इंटीग्रेट करना है आपको. तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू DM हो गया RO स्क्वायर DM इंटीग्रेशन ऑफ H स्क्वायर DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ RC स्क्वायर DM प्लस ट्वाइस HX DM. सभी को इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 this integration of RO square DM it is nothing but IO is equal to H square constant है, दो पैरेलल लाइन में का डिस्टेंस तो H स्क्वायर बाहर निकाले, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू DM प्लस RC स्क्वायर DM is nothing but your IC इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2H बाहर निकाले, इंटीग्रेशन X DM, ये इंटीग्रेशन X DM 0 होता है. ओके, तो वी राइट हियर 0. IO इज इक्वल टू H स्क्वायर इंटीग्रेशन DM. वी नो दैट इंटीग्रेशन DM इंटीग्रेशन ऑफ DX इट इज इक्वल टू X रहेगा, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ DM M रहेगा बाय यूजिंग फॉर्मूला प्लस IC प्लस ये 0 है तो 0 लिखे, तो आपको मिल गया IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर. हेंस प्रूव्ड. इज इट क्लियर टू यू? Okay, thank you.